Hello students, today we'll be starting the fourth chapter, that is atoms, molecules and radicals. You already had a brief idea in last class that what are atoms, what is the difference between atoms and molecules, and some radicals which were told to you. So in this chapter you will be learning about that atom is the smallest particle of an element. It is not capable of independent existence, and the properties of an element depend upon the atoms which are present in that particular element. Okay. So first we will start with definition of atom, molecule and radical. So every matter is made up of some tiny particles known as atoms. And when these atoms combine to form a bigger particle, it is known as molecule. Okay, they are so small, the atoms and molecules are so small that you cannot see them with the naked eye. They can only be seen with a powerful microscope. Even ordinary microscope also you cannot see it. So let's see. The word atom comes from the word atomos. And what does this word mean? It means indivisible, something which cannot be divided further. You cannot break down atoms into something simpler. This atomos was coined or given by Greek philosopher Democritus. You don't have to learn the dates, only you have to learn the name of the scientist. So Greek philosopher Democritus gave this word atomos, from which word atom was derived. He forwarded the idea that the universe was made up of very tiny, indivisible particles called atoms, and John Dalton, an English scientist, actually told that the atom is basic unit of matter, same as cell is basic unit of life. Atom is basic unit of all matter which exists. But actually, Maharishi Kannada, who was an Indian philosopher, way back before John Dalton, before Democritus, he has already given this idea that everything is made up of very small particles known as Parmanu, and Parmanu cannot be further divided. Now, learning the definition, atom is the smallest particle of an element that exhibits, shows all the properties of that element. But this is very important, this is the key word of this definition, that it may or may not exist independently. Okay, it may or may not exist, but it takes part in every chemical reaction. So this is the definition of atom which you will be learning now. Now let's see one activity. You have taken a small piece of zinc. Zinc is a metal. You have taken a small piece of zinc and you start breaking it into smaller pieces. This small piece of zinc is broken down further, and these pieces are again broken down further. A stage will come when no more division can happen. This is the smallest, means after this you cannot break down this particle, this piece. So this single particle of zinc will show all the property of that element zinc. So atoms are so small that it would take millions of them just to cover a full stop. Now you can understand how, so full stop, see, very small. A full stop is so small. Suppose I want to cover this full stop with atoms, so it would take millions of atoms to cover this small full stop. Some main characteristic of atom as given by John Dalton, that atom is the smallest particle of matter which cannot be divided further into smaller particles. सबसे छोटा होता है, इसके बाद इसको और छोटा नहीं कर सकते. ये तो उसका पहला characteristic था. Then atoms of same element are all identical, but they differ from the atoms of other element. अगर जिंक के atoms लेंगे तो सारे जिंक, कोई भी जिंक लेंगे सबके atoms एक जैसे होंगे. लेकिन अगर जिंक का एटम और आप आयरन का एटम कंपेयर करेंगे तो दोनों डिफरेंट होंगे. ठीक है, तो सेम सब्सटेंस के एटम्स सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंट सब्सटेंसेस के एटम्स आपस में सिमिलर नहीं होते. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट. जैसे सेल है, सेल एक इंडिपेंडेंट यूनिट भी हो सकता है, वो एक सिंगल सेल भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. अमीबा एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल्स यूनिसेलुलर एनिमल है, जो कि अपने सारे ऑर्गेनिज्म है, सॉरी,
तो वो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो अपने पूरे फंक्शंस करता है। उसी तरीके से एक एटम जो है वो भी सारी प्रॉपर्टीज शो करता है उस एलिमेंट की। जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि जिंक अगर हम पीस लेंगे तो सबसे छोटा जो पीस होगा वो भी जिंक की प्रॉपर्टी शो करेगा। Atom can neither be created nor be destroyed. You cannot create atom and you cannot destroy atom. It can only change its form from one form to another. Atom may or may not have independent existence, but they can take part in chemical reaction. So ये John Dalton has suggested some postulates, but actually nowadays his all the postulates have become wrong. Only last one is that it takes part in chemical reaction is true. This you will study in higher classes. Originally it was thought that atom of an element cannot be divided further. But in 20th century it was shown that atom can further divide it into 3 more fundamental particles known as electron, proton and neutron. So other fundamental particles or subatomic particles known as electron, protons and neutrons. So atom can further divided, or atom consists of these 3 kind of particles. Electrons are negatively charged and it has got 1 unit negative charge and mass is negligible. जो mass होता है इसका वो बिल्कुल उसको consider नहीं करते हैं, उसको neglect कर देते हैं, 0 होता है उसका mass. Electron, okay, and then proton P positive, neutron no charge. These are the symbols. So proton are positively charged with 1 unit positive charge and 1 unit mass. Mass is also 1 and charge is also 1. Neutrons with no electric charge, there is no charge, neutral, but they have 1 unit mass. They have mass equal to proton. Let's see this table. If you draw this table, this is not particle, this is particle. Okay. Particle is electron. This is the symbol. Proton. This is the symbol. Neutron. This is the symbol, and it is written as this. What does this mean? Electron mass है, ये ऊपर जो है वो mass है और नीचे जो है ये charge है. तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 और चार्ज -1, प्रोटॉन का मास 1 और चार्ज क्या है +1, और न्यूट्रॉन का मास 1 है और उसके ऊपर चार्ज है 0. तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. देन चार्ज इन कूलम्स. कूलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज. तो ये उसका चार्ज होता है. एंड यू कैन सी चार्ज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल टू ईच अदर. मास सी so small, electronic mass is so small that it is not considered, but proton and neutron have similar masses. That is 1.6 into 10 to the power -24 gram each. This I've already explained. That what does this subscript and superscript means? Molecule. Now what is the definition of molecule? It is the smallest particle of a pure substance. What are pure substance? We've already studied. Elements or compound which has independent existence. ये keyword है इसका molecule का. अगर molecule की definition लिख रहे हैं तो उसमें जरूर आना चाहिए कि atom may or may not have independent existence, but molecule always has independent existence. It exhibits all the property of that pure substance. Molecule is a group of 2 or more. 2 एटम्स भी हो सकते हैं उसमें और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट दे आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. देखेंगे ऑक्सीजन का जो गैस है उसका जो मॉलिक्यूल है वो O2 है. दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2. ओजोन गैस है, उसका एक मॉलिक्यूल 3 एटम से मिलके बना हुआ है. तो 3 एटम्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के और इस तरीके से वो बन जाता है आपका O3, जिसको हम बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल. तो ये तो हो गया एग्जाम्पल, 2 एटम्स के साथ बन के मिला, ये 3 एटम्स के साथ मिलके बना. बट व्हाट इज द सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी इज ऑल द एटम्स आर सिमिलर. मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं. 2 ऑक्सीजन मिल गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस वाला बना दिया,
और अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स मिल गए तो उन्होंने क्या बना दिया, ओजोन बना। बट इमेजिन कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन, तो अब ये बना रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल एंड वन वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये 1 है और ये ऑक्सीजन O है, तो 1 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें व्हाट इज द डिफरेंस? Difference is that this is made up of same kind of atom and this is made up of 2 different kind of atoms. Okay, so this is the difference. तो इसको हम बोलते हैं molecule of an element और इसको हम बोलते हैं molecule of a compound. तो याद रखिएगा, what is molecule of an element? The molecule which is made up of same kind of atom. ठीक है, for example O2, O3, H2 हाइड्रोजन गैस का वो है, देन N2 नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन, देन सल्फर, S8, फॉस्फोरस, P4। तो ये सब क्या है? ये सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हैं। लेकिन जब हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल NaCl 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। कार्बन डाइऑक्साइड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। वाटर हम देख ही चुके हैं, वाटर। एंड देन और ले लेते हैं हम Zn जिंक क्लोराइड ले लेते हैं। तो इस तरह से किसमें बने हुए, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कहलाते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैं और ये सारे मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। 2 or more atoms of same element combine to form a molecule of that element. एक ही एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2, nitrogen N2, Cl2, chlorine, and they exist in 2 atomic form. O2 2 atomic form, N2 2 atomic form, Cl2 2 atomic form. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सिंगल O नहीं मिलेगा कहीं आपको, सिंगल N नहीं मिलेगा आपको, सिंगल Cl नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ऑल तो ये इसका एक एटम है, लेकिन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दे कंबाइन टू फॉर्म एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 atom of hydrogen, another atom of hydrogen combine to form hydrogen gas. लेकिन ये हमेशा होल नंबर में होंगे, याद रखिएगा, है ना। पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नहीं होंगे। दे आर ऑलवेज इन होल नंबर्स, मतलब एटम अपने को डिवाइड नहीं कर लेगा। 1.5 एटम्स नहीं हो जाएंगे, दे आर ऑलवेज इन होल नंबर। देन सल्फर S8, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स which form molecule, we have atomicity. So what is atomicity? Very important, you should learn the definition. The number of atoms of an element that join together to form a molecule of that element is known as its atomicity. तो एक मॉलिक्यूल की अगर एटॉमिसिटी आपको निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल O2, इसमें कितने एटम्स हैं? 2, तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक हो गया। O3, इसमें कितने एटम्स हैं? 3, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया। P4 है, यानी 3 से ज़्यादा, तो पॉली मतलब होता है मैनी। ठीक है, तो पॉली मतलब मैनी, यानी मैनी एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलके बनता है। सल्फर का एक मॉलिक्यूल 8 एटम से मिलके बनता है। तो ये दोनों क्या हो गए? पॉली एटॉमिक हो गए। ये आपका डायटॉमिक, ये आपका ट्रायटॉमिक। और मोनोटॉमिक मतलब जो सिंगल एटम फॉर्म में रहते हैं। तो सिंगल एटम फॉर्म में होते हैं एक्चुअली में, वो ज़्यादातर आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब अपने सिंगल एटॉमिक फॉर्म में। यही इनका एटम भी है और यही इनका मॉलिक्यूल भी है।
ठीक है, लेकिन जितने भी मेटल्स हैं उनको हम लिखते हैं सिंगल एटॉमिक फॉर्म में, ऑल्दो वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम जब लिखते हैं तो हम मोनोटॉमिक में एग्जाम्पल देते हैं अपने सारे मेटल्स का, दैट इज़ सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। ये आपको आगे चल के पता चलेगा इन योर हायर क्लासेस व्हाई दे आर रिटन एज सिंगल एटॉमिक और मोनोटॉमिक, व्हाई दे आर नोन एज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑल्दो they combine in a cluster to exist, but they are kept in monatomic molecules. So what are monatomic molecules? They contain only one atom. जिसके पास one atom है केवल, वो monatomic हो जाता है। तो atoms of metals and metalloids do not combine with their own type of atom. कभी भी सोडियम अपने साथ, अपने के जैसे के साथ कंबाइन नहीं करेगा। कभी भी आप ये नहीं लिख सकते हैं Na2, सोडियम सोडियम दोनों कंबाइन नहीं करेंगे, तो इसलिए वो हमेशा सिंगल एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मेटल्स और मेटलॉइड्स अपने जैसे के साथ कंबाइन नहीं करते, सिर्फ नॉन मेटल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं अपने के साथ। जैसे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाएगा, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ करके जाएगा। बट मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं आपके, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिल्वर, आयरन, ये सब अपने सिंगल एटॉमिक फॉर्म में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायटॉमिक आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच कंटेन्स टू, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मोनो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। देन कम्स ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें 3 एटम्स कंबाइन करते हैं, एग्जांपल है ओजोन O3। देन पॉलीटॉमिक, more than 3, phosphorus and sulfur. So what is atomicity? It refers to the sum total of the atoms of same or different element present in a molecule. For example H2, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर की एटॉमिसिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो वाटर की एटॉमिसिटी क्या हो गई? H2O की एटॉमिसिटी, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2, कितने ऑक्सीजन के एटम है? 1, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई? 3, यानी कि वाटर जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। What does a formula denote? Molecular formula आप किसको कहते हैं? तो molecular formula of an element is the symbolic representation. When you use symbol, because in the formula you always write symbols. So it is a symbolic representation of its molecule. And what does it tell you? It tells you the number of atoms present in one molecule. Okay, one molecule of any substance contain how many atoms, what is the atomicity, that you can know about, that you can know from molecular formula. For example, molecular formula of chlorine is Cl2. This indicates that there are 2 atoms of chlorine joined chemically together to form one molecule of chlorine. And what is the atomicity? Atomicity of chlorine is 2, because here you can see Cl2, that means 2 chlorine joined together. Now here are some names and symbols and atomicity, so you have to learn this. This you can skip, you don't have to learn this, but you should know that hydrogen, इसमें आपको atomicity याद नहीं करनी है। अगर आपको formula याद है तो आपको पता चल जाएगा atomicity क्या है। H2N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2, इनकी सबकी 2 2 2 लिखे हुए, तो 2 हो गई एटॉमिसिटी। O3 की एटॉमिसिटी 3 हो गई, यानी कि ट्राई एटॉमिक हो गया। P4 की 4 हो गई, S8 की 8 हो गई। तो ये दोनों सब लास्ट वाले दोनों क्या है? पॉली एटॉमिक हैं, और O3 क्या है? ट्राई एटॉमिक है। From the above it is clear that H represents one atom of hydrogen. When I just write the symbol of any element, it represents its atom. 1H means atom, O means atom, Na means atom, Cl means atom. लेकिन अगर इसमें 2 लगा दिया तो ये इसका मॉलिक्यूल बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल? 2 नहीं, 1. This is 1 molecule of hydrogen. This is 1 molecule of chlorine. This is 1 molecule of oxygen. But this is 1 molecule of sodium. क्योंकि ये क्या है? मोनोटॉमिक है सोडियम। मेटल है ना, तो मोनोटॉमिक रहेगा। लेकिन अगर इसके आगे मैं 2 लगा दूं तो क्या होगा? Suppose I put 2 here. If I put 2 here, what does it show? So what is the difference between 2H
एंड 2H2। ये H है ना, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, ये एटम होगा। तो ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे कि मैम 2 एटम मिलके तो एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से इसको लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ये अभी आपस में इन्होंने केमिकली कंबाइन नहीं किया है, ये अलग अलग है। लेकिन जब यहाँ लिख दिया ऐसे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि ये H2 क्या है, 1 मॉलिक्यूल, इसके आगे 2 लगा दिया यानी 2 मॉलिक्यूल। तो H2 1 मॉलिक्यूल एंड H2 1 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो। ओके, तो इस तरीके से खाली H2 लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ, और इसका मतलब होता है जब नीचे 2 लगेगा, इसका मतलब होता है कि दोनों केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। दोनों ने केमिकली कंबाइन करके क्या बना दिया है, H2। If the numeral is written on the left hand side of the symbol, it represents the number of atoms or number of molecules। जैसे यहाँ पे 2H लिखा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ 2 लगा दिया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ जो नंबर है वो एटम्स भी रिप्रेजेंट करता है और मॉलिक्यूल्स भी। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हुआ, when atoms of 2 or more elements join together in a fixed ratio by mass, a molecule of compound is formed। What do you mean by fixed volume by mass? एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन and 1 oxygen when combined chemically in a fixed ratio, ratio क्या है, 2:1, that means 2 hydrogen and 1 oxygen, so ratio will be 2:1। तो 2:1 रेशियो से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। उसी तरीके से 2 atoms of oxygen combined with 1 atom of carbon to form carbon dioxide in the ratio 1:2, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो फिक्स्ड रेशियो में जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल। और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इसमें दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूल। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। ये याद रखेंगे, एलिमेंट की एटम है, कंपाउंड की मॉलिक्यूल है। जैसे H2O है वो एक मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है H2O। Every compound has its own specific molecules which are same in all respect but differ in their properties from the atoms of which they are made। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे वो डिफरेंट होते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ओके, सोडियम एक मेटल है जो कि हाईली इनफ्लेमेबल है, एकदम से उसमें आग लग जाती है अगर उसको आप बाहर छोड़ देते हैं, तो जैसे वाटर के साथ विगरस रिएक्शन करता है वो। क्लोरीन एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस है जो कि पॉइजनस है, अगर उसको ज़्यादा आप स्मेल कर लेते हैं तो आपको चोक कर देती है। लेकिन जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो एक नया कंपाउंड बनता है जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है। ओके, ना ये ग्रीनिश येलो कलर का नहीं होता, सोडियम जो होता है वो येलो कलर का होता है और जो NaCl है वो वाइट कलर का होता है। तो पहली चीज़, इसने अपने कलर छोड़ दिए, सोडियम ने भी अपना कलर पीछे छोड़ दिया, क्लोरीन ने भी अपना कलर पीछे छोड़ दिया। ये गैस थी, ये अब सॉलिड फॉर्म में है इस तरह से कंबाइन करके, और ये बहुत सेफ है खाने के लिए। जबकि सोडियम इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, क्लोरीन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, बट व्हेन इट कंबाइंस इट गिव्स अ वेरी सेफ कंपाउंड नोन एज NaCl, जो आप घर में रोज खाते हैं। नमक जो आपका टेबल सॉल्ट है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए जब भी कंपाउंड फॉर्म होता है
तो वो अपने एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको छोड़ देते हैं और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नई चीज़ बनाते हैं। ओके, और एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, वाटर का फॉर्मेशन देख लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है जो कि बहुत जल्दी जल जाती है। ऑक्सीजन क्या है? हेल्प करती है बर्निंग में, ऐसी गैस है। दोनों गैस है, गैस गैस, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? लिक्विड। एक लिक्विड फॉर्म होता है। ना ये बर्न करता है, ना ये खुद जलता है, ना ये जलने में हेल्प करता है, बल्कि ये कैसा काम करता है? इट एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने में काम आता है। तो इस तरीके से इनकी दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गई और बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज के साथ एक नया कंपाउंड बन गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि एवरी कंपाउंड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल which are same in all respect but differ in their properties from the atoms of which they are made. Accordingly, water molecule is a liquid जो कि बना है किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कि गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि बना है कार्बन से, जो कि एक सॉलिड एलिमेंट है। तो इस तरीके से they are made entirely different. The molecule of a compound can be broken into its constituent element using chemical method. अब अगर वाटर में से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालनी है, इस मॉलिक्यूल में से आपको ब्रेक डाउन करना है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा, एक केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा, तब ये ब्रेक डाउन पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मर्करिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड कंपाउंड, जब हम उसको हीट करते हैं तो इट गिव्स मर्करी एंड ऑक्सीजन विच आर एलिमेंट। तो इस तरीके से मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम हीट करके उसमें से क्या निकाल सकते हैं? मर्करी एंड ऑक्सीजन, जिनसे मिलके वो बना था मर्क्यूरिक ऑक्साइड। लेट्स सी द एग्जांपल, HgO। HgO इज फॉर्म्ड, मर्करी का सिंबल है Hg, ऑक्सीजन का O, जो मॉलिक्यूल बना उसका फॉर्मूला है HgO, and when it is heated it breaks down into Hg and O, that means its elements. वाटर में भी कैसे अलग करते हैं हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब इसको हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं एसिडिलेटेड वाटर में, एसिडिलेटेड वाटर में वाटर विच कंटेन्स लिटिल एसिड इज नोन एज एसिडिलेटेड वाटर। सो व्हेन वी ऐड लिटिल एसिड टू द वाटर एंड देन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, देन it ionizes, breaks down to ions and give hydrogen and oxygen in the ratio 2:1 by volume. Molecules of different compound show different properties. Water molecule और sugar molecule आपस में बिल्कुल different होंगे, ठीक है ना? तो different compound के जो molecules होंगे बिल्कुल different होंगे आपस में। Now coming up to the radicals, what are radicals? अभी तक तुमने पूछे समझा कि कैसे elements जो हैं आपस में combine कर लेते हैं, कैसे हम जो कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब आ गए हमारे रेडिकल। रेडिकल क्या है? इट इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। मतलब कि ऐसे ग्रुप्स, एलिमेंट के ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको हम रेडिकल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वाटर बनाते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो किस रेशियो में? 2:1 में। लेकिन मान लीजिए एक सिंगल एटम ऑक्सीजन और सिंगल एटम हाइड्रोजन जब कंबाइन करेंगे तो वो OH आ जाएगा, अगर उनके ऊपर OH उनको हम सिंबल शो करेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेडिकल। क्यों बोलेंगे रेडिकल? क्योंकि ये चार्ज्ड एंटिटी है, इसके ऊपर चार्ज है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करेंगे इनके ऊपर चार्ज हो जाएगा 1 पॉजिटिव। तो ये भी एक क्या है? एक रेडिकल है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम रेडिकल, ठीक है? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड रेडिकल। तो इनको हम रेडिकल बोलते हैं। तो फिर से समझेंगे, व्हाट इज अ रेडिकल? इट इज एन एटम, सिंगल एटम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 चार्ज नेगेटिव। एक हाइड्रोजन के ऊपर
एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिंगल एटम भी हो सकता है, रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, और अ ग्रुप, या ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्या है रेडिकल बनने के लिए, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। व्हेन इट हैज चार्ज ऑन इट देन ओनली इट इज नोन एज रेडिकल। रेडिकल्स आर ऑफ 2 टाइप। पॉजिटिव चार्ज अगर उनके ऊपर है तो उनको हम कैटायंस बोलेंगे, और उनको हम बोलेंगे बेसिक रेडिकल। तो इसमें कौन कौन से बेसिक रेडिकल आपको नजर आ रहे हैं? इसमें से बेसिक रेडिकल आपका ये है और आपका ये है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एसिड रेडिकल जो कि एनायंस कहलाते हैं, वो कौन से हैं? वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आपके हैं ये वाले, ये वाले और ये वाले, ये सारे एसिड रेडिकल्स हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो बेसिक रेडिकल के सामने लिख लीजिए पॉजिटिव याद रखने के लिए, और एसिड रेडिकल क्या क्या लिख लीजिए नेगेटिव, सो दैट यू रिमेंबर। तो कैट आयंस एंड एन आयंस, पॉजिटिव वाले को कैट आयन कहते हैं। याद करने का तरीका CAT, ठीक है, कैट आयन। तो बीच में पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है ना, तो कैट आयन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। और एन आयन, एन आयन कैसे याद करेंगे? बहुत इजी है, वो अपना नाम खुद बता रहा है, आई एम अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, ठीक है। तो एन आयन, इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। कैच आयन में आपको पॉजिटिव साइन नजर आएगा बीच में, अब लिखेंगे तो ये याद करने का निमोनिक्स है, so that you may not confuse what is cation, what is anion. So I am a negative ion and cation is a positive ion. तो cations को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल और anions को बोलते हैं एसिड रेडिकल। कौन से होते हैं बेसिक रेडिकल? जितने भी मेटालिक आयंस होते हैं, और अमोनियम आयन। अभी मैंने आपको बताया अमोनियम आयन, सोडियम, सोडियम एक मेटालिक आयन है तो पॉजिटिव है। देन जिंक एक पॉजिटिव आयन है, और कैल्शियम पॉजिटिव आयन है। तो और साथ में अमोनियम NH4+, ठीक है। ये सब क्या है? बेसिक रेडिकल्स हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और एसिड रेडिकल्स क्या हो गए? इनके उल्टे, यानी जो नेगेटिवली चार्ज है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ये सारे आपके क्या हो गए? ये हैं आपके एनायंस, यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एसिड रेडिकल। जितने भी नॉन मेटालिक एटम्स हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।